Hello 7th class students. Today we will continue our lesson number 3, virus. So today our topics start from here: computer worms, Trojan horse and spyware. So look at your book, page number 32, at the bottom of the page, the paragraph computer worms. A worm is similar to a virus in design and it is considered to be a subclass of virus. So worms बेटा in your नॉर्मल लाइफ, हम यहाँ पे रियल लाइफ में वर्म्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, ठीक है. नाउ द कंप्यूटर वर्म्स मीन्स द प्रोग्राम. दीज आर द that type of program which is designed and you can say it is considered to be a subclass of a virus. Unlike virus, it is self-replicating program having the capability to spread without any human intervention. So they have the capability also without the human help. हमारी help के बिना भी ये कंप्यूटर में फैल सकते हैं. Due to its this self-replicating nature, the end result of most cases is heavy consumption of system memory, causing web servers, network servers, and individual computers to stop responding. इससे क्या होता है कि अगर हमारा डाटा ये अपने आप हमारे डाटा के अंदर फैलने लग जाएंगे तो इससे हमारा हैवी कंजम्पशन ऑफ सिस्टम मेमोरी मीन्स हमारी जो डाटा बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो सकता है. जैसे कि वेब सर्वर को में जो डाटा पड़ा वो भी लॉस्ट हो सकता है. इवन हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से ख़राब होकर स्टॉप कर सकता है एंड इट विल नॉट रिस्पॉन्ड. एंड इन रीसेंट वर्म अटैक सच एज द मच टॉक्ड अबाउट ब्लास्टोवर्म. आजकल जो है ब्लास्टोवर्म भी कहते हैं इसको, जो बहुत ज़्यादा हमारे कंप्यूटर में यू कैन से प्रोग्राम्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर रहा है. द वर्म वॉज डिज़ाइंड to a tunnel into a system and allowed malicious user to control computers remotely. और हमारे कंप्यूटर्स को कोई भी कहीं से भी बैठा कंट्रोल कर सकता है. रिमोटली मीन्स कहीं से भी बैठ के हमारे कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल कर सकता है. ये ऐसे वायरसेस होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रोजन वर्म. Now next is our Trojan horse. Trojan horse. The name Trojan horse is derived from the wooden horse used by the Greek army to conquer the city of Troy. So this name of Trojan horse is came from the which Greek army is there. They are using the one horse, you can say horse is that is made up of wooden. So that's why this name has come, Trojan horse. The Trojan horse at first glance will appear to be a useful software but will actually damage the computer once it is installed. So in the starting when you are installing this software, Trojan horse software, it looks like it is very useful software. But whenever it is installed in the computer, it starts destroying our files. Users on the receiving end of the Trojan horse are usually tricked into opening them, and which people are sending the Trojan type of programs. They have trick to open our programs by installing this type of programs in our computer. Trojans have different behavior once they gain access into the system. So once they enter into the computer, they showing some suspicious behavior to with our system. For example, some Trojans change the desktop by adding silly desktop icons. Some prevent applications from running. कुछ applications हमारे चलाने से बंद कर देते हैं. हमारे सिली डेस्कटॉप पे आइकन्स आने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली एंटीवायरस एप्लीकेशंस. सो ट्रोजन आर ऑल्सो नोन टू क्रिएट अ बैकडोर ऑन ए कंप्यूटर दैट गिव्स एन ईजी एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मलिशियस यूज़र. और हमारा जो स्पेशली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको चलाना ये बंद कर देते हैं और चुपके से जैसे कोई घर के अंदर घुस जाता है ऐसे चुपके से हमारे कंप्यूटर के अंदर आके बैठ जाते हैं और हमारा जो डाटा है वो मलिशियस यूज़र मीन्स जो लोग उनको हार्म पहुंचा सकते हैं हमारे डाटा को, उनके तक पहुंचा सकता है. दस अलाउइंग योर कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड. आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो सकती है. अनलाइक वायरसेस, द वर्म्स ट्रोजन डू नॉट रिप्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स नॉर डू दे सेल्फ रेप्लिकेट. दूसरी फाइल्स की तरह ही अपने आप नहीं कंप्यूटर में फैल सकते. दे रिक्वायर ह्यूमन एक्शन टू रन. सो ह्यूमन एक्शन मीन्स अगर आप उस फाइल पे कहीं क्लिक कर दो या ओपन कर दो उस फाइल को कंप्यूटर में, देन दिस टाइप्स ऑफ फाइल्स कैन केम इनटू योर कंप्यूटर. नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. Spyware is a type of malicious software that gains entry into a system and monitors the user activity without his knowledge.
and then reveals the collected information to another interested party. तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट वो सारी कलेक्ट कर लेता है, और जो हमारी राइवल्स हैं, लाइक किसी कंपनी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, और दूसरी कंपनी अगर उसको ख़रीदना चाहती है तो वो स्पाईवेयर सॉफ्ट के थ्रू क्या करती है कि सारा डाटा कलेक्ट करके उसको ख़रीद सकती है और हमारा डाटा किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को आगे भेज सकती है. Spyware programs can collect various types of personal information such as internet surfing habits, visited web pages, passwords and even credit card numbers. स्पाईवेयर क्या क्या कर सकता है, ऐसे प्रोग्राम्स हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं, सच एज हमारी इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, हमने कौन कौन सी वेबसाइट खोल के देखी, कौन कौन सी पेजेस देखे, कौन कौन सी वेबसाइट पे विज़िट किया, हमारे पासवर्ड क्या है, इवन हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर तक भी ये हमारे से देख सकता है. They have the ability to scan files on the hard drive. Snoop means find out something, कुछ ढूंढना. Other applications such as chat programs or word processors. While doing so, they consistently transmit this information in the background to someone else who will either sell the information to another party or use it for advertising marketing purposes. तो हमारे जो फाइल्स हैं वो चुपके से ऐसे हम कोई चैटिंग करते हैं उस दौरान हमारी फ़ाइल चोरी हो सकती है. हमारी मतलब स्नूप मीन्स वो कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, या तो उसमें एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और दे कैन सेल द information to another interested party also. Sometimes they also change the computer settings which results in slow connection, speed and wrong functionality of other programs. कई बार हमारे कंप्यूटर की सेटिंग्स भी ये चेंज कर देता है जिससे हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लग जाता है, रॉन्ग फंक्शनिंग और शुरू हो जाती है, उसमें रॉन्ग फंक्शनिंग करने लग जाते हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स. सो दिस इज़ द अबाउट स्पाईवेयर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टेप्स टू प्रिवेंट वायरसेस. वायरस से कैसे बच सकते हैं. सो इन टूडेज़ टाइम डाटा होल्ड्स द सेम वैल्यू एज मनी और गोल्ड. तो आजकल के टाइम में डाटा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पैसा और सोना. सो वी शुड टेक एवरी पॉसिबल स्टेप्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट और डैमेज. तो हमें सब वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमारा डाटा बच सके लॉस्ट होने से या ख़राब या डैमेज होने से. जनरली कंप्यूटर इन्फेक्ट्स spreads from one computer to another by transferring infected data using email, flash drives और other sources. तो जनरली हमारे कंप्यूटर में हमेशा वायरस कब आएगा, किसी भी इन्फेक्टेड पेन ड्राइव के थ्रू या ईमेल या फ्लैश ड्राइव और यू कैन से अदर सोर्सेज, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है. टू प्रिवेंट वायरस अटैक फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्विप द पीसी विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम्स एंड कीप इट अपडेटेड. हमेशा अपने कंप्यूटर के अंदर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखो और उसको अपडेट करते रहो. न्यू अपडेट एंटीवायरस आते रहते हैं मार्केट में, उसके साथ अपने कंप्यूटर को अपडेट करते रहो. चेक वेदर योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज़ द पोटेंशियल टू डिटेक्ट स्पाईवेयर एंड मालवेयर. इफ़ नॉट यू शुड इंस्टॉल सम एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स ऑल्सो ऑन योर सिस्टम. आपको ये भी एंटीवायरस खरीदते समय देखना कि वो एंटीवायरस स्पाईवेयर और मालवेयर जैसे वायरसेस को ढूंढ लेता है कि नहीं, उनमें पोटेंशियल है, मीन्स पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी है कि नहीं है उस वायरस को ढूंढने की. देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू बाय दैट टाइप ऑफ वायरस, दैट टाइप ऑफ एंटीवायरस. इंस्टॉल अ फायरवॉल ऑन योर सिस्टम टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक. तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल रखो ताकि आपको जब भी कोई ईमेल वगैरह आए, कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग जो भी आपके मैसेजेस इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं, then they will send you the message before sending or receiving. Always scan the pen drive before copying files. हमेशा पेन ड्राइव को स्कैन करो, उसमें कोई वायरस तो नहीं है. Avoid downloading the installing pirated software from the internet. कोई भी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर इंटरनेट से मत डाउनलोड करो अपने कंप्यूटर के ऊपर. Scan the downloaded files before opening them. कभी भी फाइल ओपन करने से पहले उसको स्कैन करो एंटीवायरस के साथ. Scan the hard disk twice a month. हमेशा अपने हार्ड डिस्क को 2 बार महीने में 2 बार अपनी हार्ड डिस्क को स्कैन करके रखना चाहिए. टेक अ बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एवरी डे. अगर आपका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर, देन यू हैव टू टेक द बैकअप. उनका किसी पेन ड्राइव या सीडी में आप स्टोर करके रखो ताकि कंप्यूटर में से अगर लॉस्ट भी हो जाए देन यू कैन टेक इट और स्टोर इट बैक ऑन योर कंप्यूटर. यूज़ इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट्स वेरी केयरफुली. नेवर क्लिक ऑन द अटैचमेंट इन ईमेल unless it is from some genuine or trusted source. Trusted means अगर आपको विश्वास के जहाँ से आपको ईमेल्स आ रही हैं तो कभी भी ऐसे ही मत ओपन करो ईमेल्स को. आपको लगता है कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, येस दिस इज़ जेन्युइन ईमेल, देन यू हैव टू ओपन. अदरवाइज
try to avoid the open these kinds of emails. Next is what is antivirus. So students, antivirus is a computer program which is designed to identify, prevent and remove viruses from the computer. जैसे हमें बीमारी दूर करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में अगर ऐसे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो वायरस फैलाते हैं, तो उस वायरस को ख़त्म करने के लिए ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो उस वायरस को ख़त्म करते हैं. उस प्रोग्राम्स को बोलते हैं हम एंटीवायरस प्रोग्राम्स. तो एंटीवायरस प्रोग्राम्स का काम क्या है? फर्स्ट, scan the files to look for known viruses from computer from virus dictionary and tries to remove them. तो वायरस की डिक्शनरी में जितने भी वायरसेस के नाम है वो सभी के साथ उनको मैच करेगा और ट्राई टू रिमूव द वायरस फ्रॉम अवर कंप्यूटर. आइडेंटिफाई अ सस्पिशियस बिहेवियर ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम विच माइट इंडिकेट इन्फेक्शन. सस्पिशियस मीन्स अगर को हमारा कंप्यूटर अजीब सा बिहेवियर करेगा, फाइल ओपन करने में देरी करेगा, देन इन दैट केस इट विल फाइंड दैट टाइप ऑफ viruses also. Scans incoming emails which might contain virus in the attachment. जितनी भी emails आ रही हैं अगर उसमें कोई वायरस होगा तो उसको स्कैन करेगा. कोई अटैचमेंट आई उस फाइल के साथ, then it will scan for that type of viruses also. Some popular antivirus software in use nowadays are as follows: MCAP, AVG Antivirus, Quick Heal, Microsoft Security Essentials, Symantec, Norton Antivirus. नेक्स्ट इज़ फ्री एंड पेड टूल्स. सो आपको जो है एंटीवायरसेस हैं वो फ्री भी मिल जाते हैं कुछ नेट के ऊपर, या फिर आप उनको ख़रीद सकते हो. विच आर वेरी गुड एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर देयर, यू हैव टू पे फॉर देम. सो सम फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर अवास्ट, AVG, Avira, Bitdefender, Panda, Sophos and Komado. And the paid antivirus softwares are Kaspersky, MCAFE, WebRoot Secure Anywhere, Trend Micro and Quick Heal. So how antivirus works? A database that contains a list of files patterns which are used to identify a virus. तो उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो भी डाटा आप उसके डाटा के साथ मैच करेंगे, जो वायरस के फाइल पैटर्न्स हैं, अगर उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए देन दे ट्राई टू रिमूव देम. द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एंटीवायरस इज स्कैन इंजन विच स्कैन्स फाइल्स एंड कंपेयर्स देम विद द पैटर्न फाइल्स टू वेरीफाई इट इज़ देयर इफ देयर इज़ एनी इन्फेक्शन. तो जो भी जिस पैटर्न में वो प्रोग्राम बना हुआ है, इफ देयर इज़ वायरस इन दैट पैटर्न देन इट इज़ मैचिंग विद द एंटीवायरस प्रोग्राम पैटर्न. देन इफ they are matching, then they try to remove that type of virus. Now let's see importance of regular updates. तो जो आपके एंटीवायरस हैं तो उनको आप अपडेट करते रहो, ठीक है, टाइम टू टाइम. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव सेक्शन दैट एवरी एंटीवायरस हैज़ अ वायरस डेटाबेस दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ फाइल पैटर्न्स विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वायरस. तो हर एंटीवायरस का एक पैटर्न होता है उसको पकड़ने का वायरस को, कि अगर वायरस उसी फाइल में उसी पैटर्न में बना है देन दे कैन आइडेंटिफाई दैट वायरस. Therefore, to catch a different and new types of viruses, the virus database of antivirus has to be updated frequently. तो मार्केट में नए नए वायरसेस आते रहते हैं, तो उन वायरसेस के आगे न्यू एंटीवायरस भी आएंगे. अभी आज जो वायरस है उसका एंटीवायरस थोड़े दिनों में आएगा. इट मीन्स हमें अपने न्यू वायरस को, हमें अपनी प्रोग्राम जो एंटीवायरस प्रोग्राम उसको अपडेट करते रहना चाहिए. सिंपली इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर डज नॉट गारंटी 100% प्रोटेक्शन. सिंपली अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल भी कर लेते हैं तो ये 100% आपको गारंटी नहीं देता कि आपका कंप्यूटर सिक्योर है या प्रोटेक्टेड है वायरस से. एज द इंस्टॉल एंटीवायरस मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट एनी न्यू वायरस प्रोग्राम, क्योंकि न्यू जो वायरस प्रोग्राम उसका एंटीवायरस थोड़े दिनों के बाद में आता है. इट मीन्स दैट वायरस कैन नॉट डिटेक्ट द वायरसेज विच आर new ones with the old ones. Frequently updating an antivirus software will ensure that the system is always armed and well prepared to the war against all types of virus threats. Latest virus protection is crucial for protecting your valuable documents. Protecting your computer and your personal files from virus threat is the continuous ongoing activities that you need to vigilant about. आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा जो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आ रहे हैं उसके लिए अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंस्टॉल एंटीवायरस. साथ साथ में अपडेट करते रहो. मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डाउनलोड लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम देयर वेबसाइट्स. तो जितनी भी न्यू कंपनीज हैं जो एंटीवायरस की हैं वो साथ साथ में आपको ये ऑप्शन देती रहती हैं कि आपने कैसे अपने एंटीवायरस को न्यू एंटीवायरस के साथ अपडेट करना है.
So this is your chapter about virus.